السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم مشاهدین الکرام. آپ سب کو خوش آمدید عربی زبان کے کورس میں. اور اس کورس میں ہم جو مشہور و معروف کتاب پڑھ رہے تھے وہ ہے دروس اللغہ، اور اس کتاب کا پہلا سبق ہم پڑھ رہے تھے، اور آج اس کا تیسرا لیکچر ہے. اور اس لیکچر میں ہم اس پہلے سبق کے سلسلے میں کچھ گرامر کی نکات اور گرامیٹیکل پوائنٹس جان لیں گے. اور پہلا یہ جو سبق تھا یہ ہاذا کے سلسلے میں تھا. اور یہ جو ہاذا ہے اس کو لکھا جاتا ہے اس طریقے سے، لیکن پڑھا جاتا ہے اس کو ہا الف زبر ہا، زال الف زبر زا، ہاذا. اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے ہا کے بعد الف، لیکن لکھا جاتا ہے الف کے بغیر. اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یا پوائنٹنگ پروناؤن، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں اسم الاشارہ. اسم الاشارہ، اور اردو میں کہتے ہیں اسم اشارہ. اور یہ جو ہاذا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، یعنی انگلش میں دس. اور یہ جو ہاذا ہے یہ اسم ہوتا ہے، اور یہ عربی زبان میں جو ہاذا ہے یہ پروناؤن انگلش میں مانا جاتا ہے، اور باقی پروناؤنز کی طرح یہ بھی عربی زبان میں ڈیفینٹ ہے، اسم خاص اور اسم معرفہ ہے. اور ہاذا مذکر ہے اور مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور ہاذا کے برعکس اس کا مؤنث بھی ہے. تو یہ ہے اس کے سلسلے میں. اب گرامیٹیکل ڈیفینیشن ہاذا کی کیا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. ہاذا ہے اسم اشارتن، یہ اسم اشارہ ہے، یعنی اشارہ کرنے کا اسم ہے، اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ لمفرد، للمفرد ایک کے ساتھ، سنگولر کے ساتھ، واحد کے ساتھ، المذکر اور وہ مذکر ہونا چاہے، مسکولائن اور میل ہونا چاہے، نر ہونا چاہے، القریب اور قریب ہونا چاہے، نزدیک ہونا چاہے، چاہے عاقل ہو، عقل مند ہو، ریشنل ہو، انسان جن اور فرشتوں کی طرح، یا غیر العاقل، یا انسان جن اور فرشتوں کے سوا باقی جو irrational beings ہے وہ ہو. یعنی ہاذا استعمال ہوتا ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے ایک کے ساتھ، مذکر کے ساتھ، قریب کے ساتھ، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل. عاقل کی مثال یہاں پہ ہے ہاذا رجل، یہ آدمی ہے، دس از اے مین. اسی طریقے سے ہاذا ولد، دس از اے بوائے، یہ لڑکا ہے. ہاذا شیخ، دس از این اولڈ مین، یہ شیخ ہے، بزرگ ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہ غیر عاقل irrational being کی مثال ہے. اسی طریقے سے ہاذا باب، یہ دروازہ ہے، دس از اے ڈور. ہاذا قلم، دس از اے پین، یہ قلم ہے. یہ ہے ہاذا. اس کے بعد ما ہاذا. ما ہاذا کا مطلب ہوتا ہے واٹ از دس، یہ کیا ہے. یہ جو ما ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں واٹ، یعنی اردو میں کیا. اور یہ جو ما ہے یہ عربی زبان میں سوال بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کن کے ساتھ؟ جو irrational beings ہوں گے. irrational beings کا مطلب ہوتا ہے غیر عاقل، جو عقل نہیں رکھتے ہیں. عقل رکھنے والے عربی زبان میں 3 کیٹیگریز ہے، انسان جن اور فرشتے. ان کے سوا جو ہے چاہے وہ نان لیونگ تھنگز ہو، اینیملز ہو، پلانٹس ہو، یہ سارے غیر عاقل میں آتے ہیں. اگر ان کے ساتھ سوال بنانا ہو تو پھر وہاں پہ ما استعمال کریں گے WH کوشچن بنانے کے لیے. جیسے ما ہاذا، واٹ از دس. تو اب یہ جو ما ہے اس کو گرامیٹیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم استفہام لغیر العاقل. یہ ہے اسم استفہام، یعنی کوشچن پروناؤن، یعنی انٹروگیٹو پروناؤن ہے یہ، اور استعمال ہوتا ہے لغیر العاقل. یہ کوشچن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر جو عاقل نہ ہو، جو غیر عاقل ہو، irrational being ہو. اب دیکھیں یہاں پہ ما ہاذا، what is this، یہ کیا ہے.
तो जवाब में कह सकते हैं हाजा किताबुन, ये किताब है, दिस इज ए बुक। इसी तरीके से मा हाजा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो जवाब कह सकते हैं हाजा बाबुन, दिस इज ए डोर, ये दरवाज़ा है। इसी तरीके से मा हाजा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, हाजा कलमुन, ये कलम है, दिस इज ए पेन। अब देख ले, यहाँ पे किताब है, बाब है, कलम है, ये तीनों गैर आकिल है, इसलिए हैं यहाँ पे माँ का इस्तेमाल करना सही है। अब ये हम देख लेंगे मा हाजा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसके जवाब में हाजा रजुलुन, ये आदमी है, दिस इज ए मैन, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि रजुल जो है वो इंटेलिजेंट बीइंग है, वो रैशनल है, वो अकल वालों में शुमार होता है, इसलिए इसके साथ माँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। या तो यहाँ पे अब माँ को चेंज करना है और माँ के बदले मन लाना है, या रजुल के बदले कोई और लफ्ज़ लाना है जो गैर आकिल हो। इसी तरीके से माँ हाजा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो इसके जवाब में हाजा वलदुन, ये लड़का है, दिस इज़ ए बॉय, ये लड़का है, ये कहना इसके सिलसिले में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वलद इंटेलिजेंट बीइंग में आता है, रैशनल में आता है, तो अब इसके साथ ये इस्तेमाल करना यानी माँ का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। या माँ को इस्तेमाल करेंगे तो वलद को नहीं करेंगे, या वलद को इस्तेमाल करेंगे फिर माँ के बदले मन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद और एक है, वो है अहाजा सरीरुन। हमने पहले सबक में इस तरीके की इबारत देख ली। आ का मतलब होता है अहाजा सरीरुन, का मतलब होता है इज दिस ए बेड। आ का मतलब होता है क्या, हाजा का मतलब होता है ये। अहाजा सरीरुन इज दिस ए बेड, क्या ये बेड है। ये जो आ हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ये जो आ है इसको कहते हैं पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन, यानी क्वेश्चन पार्टिकल, यानी ये सवाल बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक स्टेटमेंट है, एक जुमला है, एक सादा जुमला है, उस सादे जुमले को सवाल में तब्दील करने के लिए पहले हमजा ज़बर आ लाया जाता है, तो उससे फिर वो यस नो टाइप क्वेश्चन बन जाता है। तो अब ये जो हाजा है, आ है, ये आ ग्रामर में क्या है, हम इसको कहते हैं हमजतुल इस्तिफाम, यानी क्वेश्चन पार्टिकल, यानी पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन, यानी वो हमजा जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जवाब जो होता है हरफु जवाबुहु, उसका जो यानी जवाब आता है वो नाम यानी यस हाँ, आओ और ला नो नहीं की सूरत में आता है। यानी हमजा स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाने में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके जवाब में हम नाम जिसका मतलब हाँ यस, और या ला जिसका मतलब नहीं इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे हाजा सरीरुन, ये था हाजा सरीरुन, दिस इज ए बेड। अब अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो हम कहेंगे हाजा सरीरुन इज दिस ए बेड, तो जवाब में कह सकते हैं नाम यस हाँ। अगर सिर्फ इतना कहेंगे नाम या ला तो जवाब मुकम्मल माना जाएगा। फिर अगर मज़ीद तफसील बताएंगे तो ये भी बता सकते हैं हाजा सरीरुन, हाँ ये नाम, हाँ हाजा सरीरुन ये बेड है। इसी तरीके से हाजा रजुलुन, क्या ये आदमी है, इज दिस ए मैन, तो जवाब में कह सकते हैं नाम हाँ यस, हाजा रजुलुन दिस इज ए मैन, ये आदमी है। इसी तरीके से हाजा कुर्सियुन इज दिस ए चेयर, क्या ये कुर्सी है, तो जवाब में कह सकते हैं ला नहीं। फिर है क्या, हाजा सरीरुन ये बेड है, ये पलंग है। इसी तरीके से हाजा वलदुन इज दिस ए बॉय, क्या ये लड़का है, तो जवाब में कह सकता है ला नहीं नो, हाजा रजुलुन दिस इज ए मैन, ये आदमी है। तो हमने सीखा है, तो पार्टिकल ऑफ आंसर
नाम और ला है, हुरूफुल जवाब इनको कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ आंसर, यानी आंसर देने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और अ को हरफुल इस्तिफहाम कहते हैं, पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन, ये जुमला को सवाल में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद और एक है पहले सबक में ग्रामेटिकल पॉइंट, वो है मन। जैसे मन हाजा, हु इज दिस। मन का मतलब होता है कौन, यानी हु। हाजा का मतलब होता है ये। मन हाजा, हु इज दिस, ये कौन है। और ये जो मन, ये इस्तेमाल होता है रैशनल बीइंग्स के साथ। रैशनल बीइंग्स का मतलब होता है यानी आकिल जो है। और आकिल अरबी ज़ुबान में 3 कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 3 कैटेगरीज अरबी ज़ुबान में आकिल शुमार होते हैं। उसमें इंसान और ह्यूमनस, और इसके अलावा जिन और एंजल्स यानी फरिश्ते। इंसान, जिन और फरिश्ते, इन तीनों को आकिल कहा जाता है। इनके साथ जब सवाल बनाना हो, WH क्वेश्चन बनाना हो, तो वहाँ पे फिर मन का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये जो मन है, इसको ग्रामर में ग्रामेटिकल डेफिनेशन क्या है, ये भी इस्म इस्तिफहामिन, ये भी यानी क्वेश्चन प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लिल आकिल, आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये भी इस्म है, मन भी इस्म है, और ये सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है आकिल के साथ। जैसे मन हाजा, हु इज दिस, ये कौन है। जवाब में हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। दिस इज ए डॉक्टर। इसी तरीके से मन हाजा, हु इज दिस, ये कौन है। जवाब में कह सकते हैं हाजा वलदुन, दिस इज ए बॉय, ये लड़का है। इसी तरीके से मन हाजा, हु इज दिस, ये कौन है। हाजा तालिबुन, दिस इज ए स्टूडेंट, ये तालिब इल्म है। अब देखें यहाँ पे तबीब, वलद और तालिब, ये तीनों हैं इंसान, और इंसान आकिल है, तो इनके साथ मन इस्तेमाल करना दुरुस्त है। उसके बाद मन हाजा, ये कौन है, हु इज़ दिस, तो इसके जवाब में हाजा किताबुन कहना दुरुस्त नहीं है। किताब क्योंकि गैर आकिल है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल इसको करना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से मन हाजा, हु इज़ दिस, हाजा कलमुन, दिस इज़ ए पेन, ये कहना दुरुस्त नहीं है। और एक बात याद ये रखनी है, माँ के ज़रिए सवाल बन जाता है सिर्फ इर्रेशनल बीइंग्स के साथ, गैर आकिल के साथ, और मन से सवाल बन जाता है सिर्फ आकिल के साथ। उसके बरक्स आ के ज़रिए, हमजा ज़बर आ के ज़रिए सवाल बन जाता है आकिल और गैर आकिल दोनों के साथ। जैसे यहाँ पे अहाजा तबीबुन, क्या ये डॉक्टर है। इज दिस ए डॉक्टर, तो जवाब में कह सकते हैं नाम, हाँ, यस, हाजा तबीबुन, दिस इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे तबीब अब आया, तबीब डॉक्टर को कहते हैं, ये आकिल है, इसके साथ भी आ के जरिए सवाल बना। अब देखिए दूसरी मिसाल, अहाजा कल्बुन, इज दिस ए डॉग, क्या ये कुत्ता है। तो जवाब में है नाम, हाँ, हाजा कल्बुन, दिस इज ए डॉग। तो यहाँ पे कल्ब कुत्ते को कहते हैं, ये आया है, और ये इर्रेशनल है, गैर आकिल है, तो दोनों के साथ इससे समझ आया कि दोनों के साथ हम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अहाजा तालिबुन, क्या ये तालिब इल्म है। इज़ दिस ए स्टूडेंट, तो जवाब में कह सकते हैं ला, नो, हाजा तबीबुन, दिस इज़ ए डॉक्टर, नहीं, ये डॉक्टर है। उसके बाद अहाजा कित्तुन, क्या ये कित्तुन यानी बिल्ला है। इज़ दिस ए कैट, तो जवाब में कह सकते हैं ला, नो, नहीं, हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। दिस इज़ ए डॉग। ये था पहले सबक के सिलसिले में कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स, बाकी इंशाल्लाह आगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।